آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا، آج اس ایٹمی پاکستان میں جہاں پر 18 کروڑ لوگ بستے ہیں، وہاں سے کاروبار کرنے والے لوگ آج بنگلہ دیش چلے گئے۔ 40% ہماری لونز جو ہیں وہ بنگلہ دیش چلی گئی کہ یہاں سے بجلی نہیں ہے، اور 15 سال سے ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 6% ہے۔ ہندوستان کو دیکھیے، آج ہندوستان کا صرف تجارتی حجم چائنا کے ساتھ جو ہے وہ $74 ارب کا ہے، $74 ارب کا، اور ان کا پلان ہے کہ اگلے 5 سالوں میں $100 ارب کا بزنس وہ چائنا کے ساتھ کریں گے۔ دیکھیے، آج اس ملک میں کمی نہیں ہے، ہمارے پاس گیس کے ذخائر موجود ہیں، ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں، ہمارے پاس تانبے کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، اور صرف تانبے اور سونے کے ذخائر کی مالیت $250 ارب ہے، اور پاکستان کا کل قرضہ $64 ارب ہے۔ تو اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے کس نعمت سے نہیں نوازا؟ آج کمی ہے تو میرے جیسے لوگوں کی نیتوں میں فتور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، پاکستان کا فائدہ بعد میں سوچی جائے گی۔ اس سوچ کو بدلنا ہے۔ آج میں آپ سے کھلی بات کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ نہیں چاہیے آپ کا، مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں چاہیے۔ آج ایک پاکستان جو آج جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں چھتری دی، ہمیں آزادی کا سانس لینے کا موقع دیا، آج اس پاکستان کو آپ کا ووٹ چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو نئے سرے سے بنانا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج حمزہ شہباز آپ کے سامنے کھڑا ہے، 8 سال جلا وطنی کے، اور آج 5 سال ہونے کے آئے ہیں کہ میں MNA بھی ہوں اور وزیر اعلیٰ کا بیٹا بھی ہوں۔ میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے ہے کس کے بیٹے نے کیا کیا، کس کے بیٹے نے کیا کرپشن کی۔ آج میں فرشتہ نہیں ہوں، لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایک بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ آج حمزہ شہباز شریف نے اپنا جو ہے وہ سستی کی ہوگی، کہیں پر اپنا جو ہے غلط فیصلہ کیا ہوگا، لیکن آج خدا کے فضل و کرم سے، میرے والدین کی دعاؤں سے، ایک پائی کی کرپشن کا ثبوت حمزہ شہباز شریف کے خلاف نہیں ہے۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے۔ اور سب اچھا نہیں ہے، 2 باتیں ہیں۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا، اور یہی وہ ہتھیار ہے جو $10 بلین امریکہ کے مشرف کی تجوری میں گئے، وہ جو دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکے، یہ تعلیم جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے گی۔ ان لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ انڈاؤمنٹ فنڈ جیسا منصوبہ جو $5 ارب سے شروع ہوا، آج $10 ارب کا منصوبہ ہے، جس سے کسی امیر آدمی کے نہیں، عام آدمی کا بیٹا بیٹی جو ہے، جو بیچارے نہیں افورڈ کر سکتے، وہ بچے جو ہیں اس $10 ارب کے انڈاؤمنٹ فنڈ سے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ کی تقسیم جو ہے منصفانہ تقسیم ہوئی کہ یہ بچے بچیاں جو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو میرٹ پر لیپ ٹاپ دیا جائے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی حصہ ہیں جتنا اپنا حمزہ شہباز ہے، جتنا حق حمزہ شہباز کا ہے اتنا ہی حق ان طلبہ و طالبات کا بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارے حکمران جو ہیں کس طرح ڈرون حملوں پر واویلا کرتے ہیں کہ جی اپنا جو ہے ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے، اگلے ہی دن ڈرون اٹیک ہوتا ہے، اور یہی معصوم ماؤں کے بچے بچیاں جو ہیں وانا وزیرستان میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان چاہیے تھا کہ جہاں پر ہماری خود مختاری جو ہے اس پر بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ یہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں ہے، 18 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اور دیکھیے ترکی کو $30 ارب کا قرضہ تھا اس پہ، اور امریکہ نے کہا کہ آپ ہمارے
अड्डे जो हैं आप हमें दे दें, ये $30 अरब जो है हम आपका मुआफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला कोई वाहिद आदमी नहीं करेगा, ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट बैठी, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की खुद मुख्तारी $30 अरब से ज़्यादा कीमती, हम ठोकर मारते $30 अरब को हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको अपने अड्डे फराहम नहीं करेंगे। ऐसा मुल्क पाकिस्तान को बनना है। क्या वो वक्त भी आपको याद है कि जब हिंदुस्तान ने भी एटमी धमाके किए थे और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को भी कहा गया था कि आप हमारी बात माने, अरबों डॉलर आपको देंगे लेकिन एटमी धमाके न करें। तो उस वक्त जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म था उसने कहा कि उदा जाता है जाए, अरबों डॉलर नहीं चाहिए। अगर हिंदुस्तान ने 5 धमाके किए तो पाकिस्तान 6 धमाके करके उसका जवाब देगा। ऐसा पाकिस्तान चाहिए हमें। और देखिए, आज मैं आपसे बड़ी अहम बात करना चाहता हूं कि अब हम सब कुड़ते हैं, जलते हैं, अंदर ही अंदर घुलते हैं कि ये क्या पाकिस्तान है, क्या बच्चों का मुस्तकबिल है, क्या बनेगा जब 6-6, 8-8, 18-18 घंटे बिजली नहीं आती। अब देखिए, अपने ज़मीर को जिंदा रखना है, अपने दिल से फैसला करना है इन आने वाले इंतखाबात में कि कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस पाकिस्तान के फरसूदा निज़ाम को बदल सकती है, जहां पर दोबारा से खुशहाली हमारे घर के दरवाज़ों पे दस्तक दे सकती है, जहां पर इन होनहार नौजवानों को इज्जत की रोज़गार फराहम हो सकते हैं, जहां पर इन वालिदैन जो सब कुछ अपने बच्चों को समझते हैं, उनके अधूरे ख्वाब जो हैं उनके बच्चों के रोज़गार की सूरत में पूरे हो सकते हैं, जहां पर करप्शन का खात्मा हो जाए। उसके लिए आपने घरों से निकलना है और पाकिस्तान के लिए वोट का हक इस्तेमाल करना है। अगर आप घरों पर बैठे रहे तो फिर पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी। इन तकरीरों से, इन शेरों से पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। अब उठना है, खड़े होना है और इस 64 साला फरसूदा निज़ाम को इन नौजवानों के साथ मिलकर बदलना है। और हम बदल सकते हैं। 1 लाख ऐसे लोग हैं जो हर साल पाकिस्तान को छोड़कर अपने रोज़गार के लिए बैरून मुल्क रुख करते हैं। वो काबिल लोग हैं, वही जाकर जो है PIA जैसी फरसूदा एयरलाइन के लोग जो हैं वहाँ पर बाहर की एयरलाइनों को जाकर नंबर 1 एयरलाइन बनाते हैं। वही दिमाग हैं जो आज मायूस होकर जा रहे हैं। हमने ऐसा कानून पास करना है कि उन लोगों को वापस बुलाना है, उनको कहना कि आओ बैठो PIA में, आओ बैठो वापडा में, आओ बैठो नॉर्दर्न सुई गैस में और बैठकर ऐसा शफाफ निज़ाम बनाओ, ऐसा रोड मैप बनाओ कि कोई सियासतदान, कोई वज़ीर-ए-आज़म आपके राह में रोड़े ना अटकाए। 10 साला मंसूबा बनाओ, कोई माई का लाल आपको हटा ना पाए। ऐसे लोग हों जो ईमानदार हों, उनको कहो आओ पाकिस्तान की तकदीर बदलो और हम साथ मिलकर उनका बाजू, उनके हाथ बने। आप देखें 5-6 साल में पाकिस्तान अपनी तरक्की की मंजिल पर गामजन हो जाएगा। उसके लिए इरादा चाहिए। और मैं कोई कागजी बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से मुआज़े होते देखे। छोटी सी बात करूंगा आपको कि जब अदलिया बहाली की तहरीक चली तो लोग कहते थे ये मुस्लिम लीग नून वाले दीवाने हैं, ये किन चक्रों में पड़ गए हैं। हमने कहा कि हमने 18 करोड़ लोगों से वादा किया हमारे कायद ने कि अगर मौका मिला तो हम अदलिया को बहाल कराएंगे। हमारे पर हंसते थे, ठट्ठा करते थे कि ये सियासी दीवाने कहाँ से आ गए। लेकिन आज एक मेरी बात सुन लो, जब मॉडल टाउन रात को मैं अपने लीडर के साथ वहाँ पर बैठा था, कोई करीबन 1000-2000 लोग हमारे साथ थे। सुबह उठे तो मुझे कान में आवाज़ पड़ी थी, वो पुलिस के ट्रक सब लोगों को उठा कर ले गए और मीडिया कह रहा था कि जी ये कब घर से निकलेंगे बाहर, तो सिर्फ 200 लोग रह गए। तो मैंने अपने कायद को ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा देखो, घर से निकलने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से अपील की। उन्होंने कहा देखो, आज जो घर बैठा रहेगा, पाकिस्तान और कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज अदलिया के लिए जो निकलेगा वो पाकिस्तान के साथ इंसाफ करेगा। और जब हम घर से निकले तो मैं आपको बताऊं कि सड़क पर आए तो एक बड़ा ट्रक जो है वो सड़क ब्लॉक कर
सामने खड़ा था। मैंने अपने कायद को कहा, मैंने कहा ये तो गाड़ी हमारी यहीं पर खड़ी हो जाएगी, हम आगे कैसे जाएंगे। आज भी मुझे याद है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा बेटा नियतों के हाल अल्लाह जानता है, आज पाकिस्तान की बका की नीयत से हम निकले हैं, अल्लाह हमारा साथ देगा। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर आपको बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम वो कैसे पलक झपकते में ट्रक हटा, 200 लोग थे, हजारों में बदले, और जब हम शाहजरा पुल पे गए तो वो हजारों का मजमा लाखों में बदल गया था। रात को 3 बजे जीटी रोड पर मैंने सफेद बालों वाली बारिश माओ बहनों को अपना इस्तकबाल करते देखा, और आपने सुना, पूरी कौम ने सुना कि 6 बजे जो है सुबह अदलिया बहाली का ऐलान हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मकसद नेक हो, नीयत साफ हो, तो अल्लाह ताला आपको तकरीरों की जरूरत नहीं पड़ती, जलसों की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह दिलों में डालता है कि बेटा देखो ये आदमी सच्चा है, खरा है, इसके पीछे लग जाओ, और अपना जो है वो कामयाबी की मंजिल अल्लाह ताला देता है। इज्जत दिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आज कामयाबी मिली, अल्लाह की देन है, आपके माँ बाप की दुआएं हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ओहदे, सियासी तरक्की, ये तकदीरों के खेल हैं, ऊपर जानता है जो बैठा हुआ है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा सियासी मुस्तकबिल क्या है, मुझे नहीं मालूम कि मैंने आगे सियासत में वजीर बनना है या अपना जो है मुशीर बनना है। एक बात जरूर है जो मैंने अपने आप से वादा किया है, और आज आपसे भी ये वादा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि हमजा शहबाज शरीफ को एक ऐसा आदमी बनना है, ऐसा सच्चा सिपाही बनना है कि यहाँ पर हर बैठा हुआ स्टूडेंट, हर बैठा हुआ बुजुर्ग, हर बैठी हुई माँ बहन जो है फख्र करे कि हाँ ये पाकिस्तान का सच्चा सिपाही है, इसने पाकिस्तान की बेलौस खिदमत की और पाकिस्तान की तरक्की में इसने अपना हाथ बढ़ाया और बेलौस खिदमत की। ये जज्बा जो है वो हमें चाहिए, और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मायूसी ज़रूर है, मायूसी ने डेरे ज़रूर डाले हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि मैं उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद आप नहीं करते। तो हमें अल्लाह ताला के इस वादे पे यकीन करना है, अज़्म व हिम्मत से काम लेना है। और अगर पंजाब हुकूमत में मैं ये समझता हूँ कि दूध की नहरें नहीं बही, लेकिन आप ये देखें कि दूर दूर तक ऊपर के लेवल पर करप्शन का दाग जो है पंजाब हुकूमत के दामन पर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे पड़ोसी ममालिक ने मेहनत कर कर नाम कमाया, आज हमजा शहबाज शरीफ का भी जज्बा है कि हम पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान की बका के लिए मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर जो सवालात हैं आपके दिल में, आपके जो ख्वाब हैं, वो अल्लाह ताला पूरे करेगा। मेरी आज यहाँ पर बैठे हुए तलबा और तालिबात के लिए दिल से दुआ है कि आप में अल्लाह ताला काबिल डॉक्टर बनाए, काबिल जज बनाए, आपको इज़्ज़त का रोज़गार कमाने के मौका फराहम करें, और आप मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करें। ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, नौजवान बैठे हैं, आज इंटरनेट पे सारी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। आज आपने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है, और ये आने वाले इलेक्शन जो हैं वो अपना जो है फैसला कौन होंगे पाकिस्तान की तकदीर में। तो खुदारा निकलिए और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दीजिए। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसकी तकदीर आपके हाथों में है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। और मैं आपको आखिर में बातें तो बहुत करना चाहता हूँ, आज लंबी चौड़ी सियासी तकरीर नहीं करना चाहता। शायर कहता है, मैं तो क्या मेरा सारा मालो मनाल, मैं तो क्या मेरा सारा मालो मनाल, मेरा घर बार मेरे अहलो अयाल, मेरे उन वलवलों के जाहो जलाल, मेरी उम्र रवां के माहो साल, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है, मेरा सब कुछ मेरे वतन का है। पाकिस्तान जिंदाबाद।